हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और खुशहाल होंगे। तो यार चैनल पर नहीं हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको आने वाले अच्छे वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। तो यार अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो वो भी कर ले, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा ही जरूरी है, क्योंकि उसके बगैर आप लोगों को कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। और अगर आप लोगों ने इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। वहां पर आप लोग कोई बात करनी हो कर सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो दे सकते हैं, कोई बात करनी हो या कोई ऐसे लिंक भेजने हो तो भेज सकते हैं, कोई हमारे थॉट्स क्लियर करने हो तो कर सकते हैं। तो मेरा नाम वजाहत है। मेरा नाम नदीम। यार आप लोग बताइए, आप लोगों के यहाँ मौसम कैसा है? बारिश वगैरह हो रही है कि नहीं? यहाँ पे तो बहुत ज्यादा गर्मी है। गर्मी भी ऐसी है कि बंदा पागल हो रहा है आजकल तो बहुत ज्यादा। एसी के बगैर तो गुजारा ही नहीं है, और या तो कूलर के वो जो पानी में होते हैं पंखे तो ऐसी गर्म हवा फेंकते हैं, यूं लगता है कि जिस तरह वो फेंक रहे हैं। तो यार आग फेंक रहे। तो अब आते हैं टाइटल की तरफ। बाबा बिपिन रावत ने तालिबान के बारे में बोला है, ठीक है, मतलब कि जिस तरह हमने आतंकियों का हाल करते हैं उसी तरह हम तालिबान का हाल करेंगे। ऐसा बिपिन रावत मतलब जो चीफ है ना इंडियन आर्मी स्टाफ जो इंडिया, उन्होंने इंडिया तो पावरफुल कंट्री है, फिर दादा तो आपको पता ही है। जाहिर सी बात इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये देख देंगे इन्होंने और कैसी बातें और क्या बोला है, मतलब कि इतनी बड़ी स्टेटमेंट तालिबान के खिलाफ दे दी इंडिया ने, वो भी इंडिया के आर्मी चीफ ने। तो आप देखते हैं कि क्या है इस वीडियो में। तो काउंट ऑन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। Everything that has happened was something that had been anticipated. Only the timelines have changed. So as from the Indian perspective, we were anticipating a Taliban takeover of Afghanistan. We were concerned about how the terrorist activity from Afghanistan could overflow into India. कि मतलब so to that extent, our contingency planning had been ongoing and we are prepared for that. यार हम तैयार हैं। Yes, the timelines have तैयारी तो होनी है भाई, सबको होनी है। Maybe couple of months down the line, but it is pretty much the same. It is the same Taliban that was there 20 years ago. हाँ बिल्कुल, 20 साल पहले भी तालिबान वही था, अभी भी वही है। Come from there are all telling us the kind of activities that Taliban is into. All that has happened is that the partners have now changed. It's the same Taliban with different partners. How does it affect the Indo-Pacific region? I think Indo-Pacific is in a different plane altogether. Dealing with Afghanistan and Taliban and terrorism from that perspective is something which we are all together fighting the global war on terrorism. It is something which was announced many years ago. So I think the Indo-Pacific issue is a different issue. It is all talking about freedom of navigation on the Indian Ocean and the Pacific Ocean region. Irrespective of what the seas or oceans are called by whatever name, we just want freedom of navigation. It also involves, with the kind of ecological imbalance that is happening, the kind of disasters we are witnessing in these areas. There are a large number of nations in this region which can be considered as the haves and the have-nots. But everybody gets equally affected by these disasters. So how can we all come together, bring support to the nations who are amongst the have-nots, need support? And therefore, I think if we have a grouping of nations in this manner and we have strategic partnerships in this manner, we can come to rescue people who get affected by this. So I think the Indo-Pacific and the Afghan situation should not be looked at from the same prism. They are two different issues. I think yes, it is a challenge to security in this region. Both pose challenges to security in the region, but they are on two different lanes. And those two parallel lines are unlikely to meet. That side we have to ensure that we are prepared to fight all actions by the terrorist activities. Our nation is committed to ensure that we have a terrorist-free environment in this region. So as far as Afghanistan is concerned, we will make sure that any activity which is likely to flow out of Afghanistan and then find its way into India will be dealt with in the manner in which we are dealing with terrorism in our country. And I think if any other support can be coming from the Quad nations in at least identifying the terrorists and getting some intelligence input to fight this global war on terrorism, I think that would be welcome. तो इसी के साथ हुई ये वीडियो खत्म। अब आते हैं अपने रिव्यू की तरफ। भाई इसमें कोई शक नहीं है कि इन्होंने जो वर्ड्स बोले हैं बड़े करारे बोले और एकदम सही बोले हैं। सही बोले, कहते हैं कि भाई हम लोग तैयार हैं। अगर कोई भी तालिबान कोई कुछ करता है, कोई चीज करता मतलब है, अगर हम पे करता है तो जाहिर सी बात है
मतलब कि हम लोग तैयार हैं। और जाहिर सी बात है जो 20 साल पहले तालिबान थे वो भी अभी वही ना। और अब सबको यार मैं तो कहता हूँ मिल के लड़ना चाहिए। जाहिर सी बात इंडिया ने इतनी बड़ी इनके खिलाफ स्टेटमेंट भी अब दे दी, जाहिर सी बात है देना पड़ेगा क्योंकि चलना पड़ेगा अब आगे, क्योंकि जाहिर सी बात है अब इनकी वजह से अगर इंडिया को इफेक्ट हुआ तो बहुत गंदा इफेक्ट होगा। तालिबान पे कोई एतबार भी नहीं करता ना। एक बात सुबह एक बात बोलेंगे, दिन को एक बात दे के ना सज्जा हाथ दे के मतलब राइट हैंड दे के लेफ्टी दे देते, मतलब यहाँ पे एक वो कहावत मशहूर है। तो इस तरह का ये सीन है। लेकिन ये है कि मैं क्या तू सही बोला है। अल्लाह के अब तालिबानों को भी ये इंटरव्यू मिलेगा ना, वो भी जब सुनेंगे तो उनको भी पता लग जाएगा कि भाई पंगा ना ही ले तो बेहतर। सही बात। जितनी गहरी नजर इंडिया की अफगानिस्तान पे इतनी और किस मुल्क की और किसी मुल्क की नहीं, क्योंकि बाबा जाहिर सी बात है इफेक्ट इंडिया भी बहुत ज्यादा हो सकता है इस चीज से। पाकिस्तान को इन्होंने एक दफा तो बहुत ही ज्यादा इफेक्ट दिया हुआ है, तो उससे भी भारत ने देखा हुआ है सब कुछ जिस तरह हुआ हुआ है सारा कुछ। तो भारत बहुत ही ज्यादा इसके लिए प्रिपेयर्ड, और इन्होंने बोला है कि भाई हम लोग तो जाहिर सी बात है तैयार आएंगे तो ठोकेंगे हम लोग। और क्या बात खत्म हो गई। अभी जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमले हो रहे होते हैं या कुछ ऐसा वैसा एक्टिविटीज हो रही होती हैं तो उसको भी भारत में कहता हूँ कि कामयाब होने से पहले उनको ठोक देते खत्म जगह भी उनका काम खराब। काबुल में बड़े काम जारी थे ना, इंडिया बड़े काम थे, डैम बन रहे थे, रोड बन रहे थे, कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे थे, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब कुछ बन रहा, बड़ा तरक्की कर रहा था काबुल। पर अब जो तालिबान आ गए तरक्की की रफ्तार रुक गई है, जगह पे खत्म। और जाहिर सी बात अब सबकी नजरें, और मैं तो कहता हूँ इंडिया सीधा जाके अंदर ऑपरेशन शुरू कर दे। बिल्कुल जाहिर सी बात एंट्री मारे चुप करके अपने जाकर। मैं तो ये सोचता हूँ ये अफगानिस्तान की 3 लाख फौज किधर है, छुप गई है, किधर भाग गई है। आई थिंक तालिबानों में इंटर हो गई है। देखें आई थिंक सो, मैं तो कंफर्म नहीं, लेकिन आप लोग बताएं अगर इसके बारे में आप लोगों को आइडिया हो तो प्लीज आप लोग बता सकते हैं। 3 लाख फौज बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी चीज। अगर 70-80 लाख तालिबान है तो फौज तो ज्यादा। मैं कहता हूँ यहाँ पे अमेरिका के लिए थू है कि मतलब कि अमेरिका कहते हैं मैंने इनको ट्रेन किया और ये बड़े वो हैं तो हाँ मैंने वेपन दिए हैं, हर चीज इनको दी है। मतलब क्या हुआ आपकी ट्रेनिंग किधर गई है इनके हाथ, ये तो भाग गए हैं भाई। 3 लाख कम चीज आर्मी। अब अगर इंडियन यहाँ पे घुसे ना फिर आप उनकी देखना बहादुरियां। और इंडिया तो खाली मैं बोलता 20-21 फौजी अगर उतार देता है, 15-20 हजार वो भी काफी है। और पापा एयर स्ट्राइक्स और ये वो इंडिया को ना जंग का तरीका पता है, जंग लड़ी कैसे जाती है। फजाइया की मदद इंडिया को हासिल है ही है बिल्कुल। और ऊपर से इंडिया को पता है कि भाई जंग का तरीका बिल्कुल इनको तो पता है ना, पहाड़ों में रहना, यहाँ का तरीकाकार कैसा है, लड़ने का तरीकाकार। पहाड़ों में तो मारा था इनको, मारा तो है ना इंडिया में, वही तो जबरदस्त मारा था इंडिया को पहाड़ों में लड़ने। लद्दाख वाली साइड पे आपको पता ही है ना, वो तो पहाड़ ही है वहाँ पे। तो क्या है तो यार आप लोग बताएं इस बारे में, आप लोग थॉट्स हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। वीडियो खत्म करते हैं, बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।